Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 2 English textbook, workbook and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantor Publishers official website. We are going to start our lesson from Unit 6, Mr. Turtle's Escape, and our topic is reading fairy tale. SLOs of this lesson are: listen to a simple story fairy tale, read aloud the same story or fairy tale, identify and name characters. Dear students, in this lesson we are going to read the text of this Unit 6, Mr. Turtle's Escape. It's a very interesting story of a goat here and a turtle. You can see it's a kitchen. And this goat here is, I think, a chef because she is wearing an apron and a chef hat. And this turtle here, she is what? Tied up. I think she's going to cook him. We will find out the story of these two by reading the text. So let's start from here. One day, Mr. Tiger found Mr. Turtle on his land. एक दिन मिस्टर टाइगर को मिस्टर टर्टल जमीन पे पड़ा हुआ मिला. He was very angry and grabbed Mr. Turtle by the flipper. वो बहुत गुस्से में था और उसने ग्रैब पकड़ लिया. जोर से पकड़ने को कहते हैं, जोर से पकड़ लिया. By the flippers, जो उसके पांव होते हैं, जो उसके फ्लिपर्स होते हैं, जिससे वो तैरता है पानी में या चलता है, उसको उससे पकड़ के गुस्से से खींचा. Then he shouted to his cook, और फिर वो अपने कुक पर चिल्लाया, Take this turtle and cook him for dinner. ले जाओ इस टर्टल को और इसको मेरे लिए डिनर में कुक कर लो. Mr. Tiger went off to invite his uncles. Mr. Tiger चला गया अपने अंकल्स को इनवाइट करने, आंट्स एंड फ्रेंड्स टू डिनर, और अपनी आंट्स और फ्रेंड्स को डिनर के लिए. और डिनर में क्या पक रहा था? टर्टल, जो उसने कुक को कहा था कि उसके लिए पका दे. द कुक chopped the onions and carrots and Mr. Turtle did the thing he could do the best. Chopped कहते हैं छुरी से काटने को, किसी चीज को चॉपिंग कहते हैं. चॉप्ड किए कुक ने अनियंस, प्याज और कैरेट्स, और मिस्टर टर्टल ने वही किया जो वो बेस्ट कर सकता था. He began to sing, और वो सबसे बेस्ट काम कौन सा कर सकता था? Yes, singing a song. He started singing. He sang so well that the cook started to dance. You can see here the cook here, the god, who started to dance when Turtle started to sing. Mr. Turtle said, My sweet cook, if you will only put me on the ground outside, I will sing so sweetly. फिर मिस्टर टर्टल ने क्या चालाकी की, उसने कुक को कहा, स्वीट कुक, अगर आप मुझे ग्राउंड पर छोड़ दो बाहर, तो मैं इससे भी ज्यादा स्वीटली गाऊंगा. The cook put Turtle outside and he sang more sweetly than ever. And the cook danced all the time. कुक ने क्या किया? उसको बाहर छोड़ दिया और टर्टल और भी स्वीटली गाने लगा. और इस सारे वक्त में उसके गाने पर कुक डांस करता. Then Mr. Turtle said, Oh my sweet cook, if you will take me to the river and put just the tip of my tail in the river, I will sing more sweetly than ever. फिर उसने फिर से चालाकी की. टर्टल ने उसने कहा कि कुक, अगर आप मुझे दरिया रिवर के पास ले जाओ और सिर्फ मेरी जो दुम है टेल, उसका जो है टिप, थोड़ा सा उसका जो कोना है दरिया में डाल दो, मेरी दुम का कोना, तो मैं इससे ज्यादा स्वीटली गाऊंगा. The cook took Mr. Turtle to the river and put just the tip of his tail in the water. कुक ने क्या किया? टर्टल को ले गया दरिया के पार और उसकी दुम का जो हिस्सा था शुरू का, वो क्या डाल दिया? पानी में डाल दिया. Mr. Turtle sang more sweetly than ever. और मिस्टर टर्टल उससे भी ज्यादा
स्वीटली गाना शुरू हो गया। एंड द कुक डांस्ड एंड डांस्ड, और कुक क्या करता रहा, डांस करता रहा, बिकॉज ही वॉज एंजॉइंग द सॉन्ग ऑफ द टर्टल। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लेट्स फाइंड आउट। पेज नंबर 31। Soon she could hear no singing. जब कुक ने महसूस किया कि कोई गाने की आवाज नहीं आ रही, she looked down, उसने नीचे देखा, there was Mr. Turtle at the bottom of the river. उसने देखा कि मिस्टर टर्टल तो दरिया के नीचे चले गए हैं, बॉटम नीचे वाले हिस्से में। अंदर तैर कर मिस्टर टर्टल waved his flippers and swam away. मिस्टर टर्टल ने अपना जो है फ्लिपर्स हिला के उसको क्या क्या वेव किया, एंड स्विम अवे, और तैरता हुआ चला गया। तो ये एक फेरी टेल थी। फेरी टेल क्यों थी? बिकॉज इट वॉज लाइक नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, इट वॉज एन इमेजिनरी स्टोरी। A goat can't dance, a turtle can't sing. It was imaginary and it is a fiction. Fiction वो स्टोरी होती है जो कि रियलिटी पे बेस ना हो, इमेजिनरी हो, फेरी टेल हो। तो ये एक फेरी टेल थी, बहुत इंटरेस्टिंग। किस तरह मिस्टर टर्टल ने चालाकी से अपनी जान बचाई, क्योंकि जो गॉड थी, जो शेफ थी, वो उसको पकाने लगी थी अपने मालिक टाइगर के लिए, मिस्टर टाइगर के लिए, जिसने गुस्से में मिस्टर टर्टल को पकड़ा था और वो उसको डिनर में खाने वाला था। तो बच्चों, ये बहुत ही मजे की स्टोरी थी। आप इसे दोबारा रीड करें और इसे समझें। ये आपका वर्ड बैंक है। यू कैन फाइंड द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ इट। क्वेश्चन 1 हियर, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। आपने इन वर्ड के क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी नोटबुक में। ग्रैब कहते हैं जोर से पकड़ने को, चॉप कहते हैं छुरी से किसी चीज को काटने को, टिप कहते हैं ऊपर वाली चीज को, किसी चीज का ऊपर वाला कोना, इसको एज भी कहते हैं। बॉटम नीचे, नीचे वाला हिस्सा। ग्रैब का मैं आपके लिए एक सेंटेंस बना देती हूं। आई ग्रैब माई बैग। अब BED आप इसलिए लगा सकते हैं, अगर आप पास्ट में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो ED का इजाफा कर सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई आपका काम कंटिन्यू है तो आप उसमें ING भी ऐड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू आर शॉपिंग, चॉप है वर्ड, यू कैन राइट लाइक दिस, आई एम shopping onions। ING का इजाफा कर दिया हमने। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट एक्टिविटी इज लाइक राइट नाउ गोइंग ऑन, कंटिन्यू है आपकी एक्टिविटी। मैं क्या कर रही हूं? ऑनियंस को चॉप कर रही हूं, कंटिन्यू है आपकी एक्टिविटी। तो आप इसमें ING और ED वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी इसको चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह आपने बाकी 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस भी बनाने हैं अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन A, व्हाट डिड मिस्टर टर्टल डू टू मेक मिस्टर टाइगर एंग्री? मिस्टर टाइगर को मिस्टर टर्टल ने गुस्सा कैसे दिलाया, यह आपने बताना है। Question B, what was the cook going to do with Mr. Turtle? Cook क्या करने जा रहा था Mr. Turtle का? Yes, he was going to cook him for Mr. Tiger for dinner. Question C, why do you think Mr. Turtle began to sing? आप क्या सोचते हैं कि Mr. Turtle ने गाना क्यों शुरू किया? Mr. Turtle began to sing because he wanted to save his life. Because the chef was going to cook him for Mr. Tiger. Question D, what would you have done if you were the cook? अगर आप कुक होते तो क्या करते? यह आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपने अपना ओपिनियन बताना है कि आप क्या करते अगर आप कुक की जगह होते। This is your homework from workbook, page number 27. Read the story from the unit and answer the following question with the help of your mother. स्टोरी हमने मिस्टर टर्टल की पढ़ी है, तो आपने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दोबारा से उसे रीड करें। वेयर डिड मिस्टर टाइगर फाइंड मिस्टर टर्टल? मिस्टर टाइगर को मिस्टर टर्टल कहाँ मिले?
क्वेश्चन 2, हु वेंट ऑफ टू इनवाइट हिज अंकल्स एंड आंट्स टू डिनर? कौन अपने अंकल्स और आंट को डिनर के इनवाइट करने के लिए गया? क्वेश्चन 3, व्हाट डिड मिस्टर टर्टल चॉप? क्वेश्चन 4, व्हाट थिंग डिड मिस्टर टर्टल डू द बेस्ट? एंड क्वेश्चन 5, वेयर डिड मिस्टर टर्टल गो एट द एंड ऑफ द स्टोरी? You have to answer all this question from your text, and we have a writing section. Make short and simple sentences with the help of your classmates. जिस तरह हमने अपनी एक्सरसाइज में, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में सेंटेंसेस बनाए थे, इसी तरह आपने इन वर्ड्स के 5 वर्ड्स हैं, लैंड, कुक, सिंग, डिनर, टाइगर. You have to make simple sentences. For example, let me make a sentence of this word tiger here. I saw a tiger. अब टाइगर को अपने सेंटेंस में यूज कर लिया. मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं जिसका कोई मीनिंग हो. थैंक यू.